Good morning, all of you. I am Kulbhushan Saini. I will discuss in this class biology. Dear students, we see so many things in our surroundings. Can you tell me some name, please? Okay. Man, woman, child, plant, cow, buffalo, dog, etc. And also we see so many things except this water, air, table, chair, house. These are things कि I write one side these things and another side that things. These are called non-living things. Non-living things, or these are called living things. Living things. I classify two categories, living things and non-living things, which are things which present in our surrounding. Okay, कि लिविंग थिंग्स हैं, ये जो लिविंग थिंग्स हैं इनको स्पेसिफिक कैरेक्टर के आधार पर क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. देखो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैव ए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. These have a physical and chemical properties. Non-living things have a physical and chemical property. Also living things possess physical and chemical properties. But living things possess biological properties. Living things possess biological properties, but non-living things does not possess biological properties. It means we can say that कि living things have a physical, chemical and biological properties, but non-living things have a physical and chemical properties but does not have biological properties. Okay, because इनमें क्या नहीं होती, लाइफ नहीं होती. किनमें, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें क्या नहीं होता, जीवन नहीं होता, लाइफ नहीं होती है. ओके, देन दीज आर लिविंग थिंग्स हैव ए लिविंग प्रोसेस. हैव ए लिविंग प्रोसेस. दे टेक बर्थ, देन ग्रोथ, मैच्योर, reproduce, then undergoes senescence, then finally natural death, and take natural, they get natural death. This is the लिविंग प्रोसेस. ये क्या है, एक जीने की प्रक्रिया है. सबसे पहले कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, क्या है, ऑर्गेनिज्म. और ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, लिविंग बीइंग्स को. किसको, लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. और लिविंग बीइंग्स हैव ए स्पेसिफिक कैरेक्टर. ओके, birth, they take birth, growth and development, then they are mature.
after maturation they reproduce offspring, they reproduce offspring, then undergo senescence या aging, finally they get natural death. बर्थ टू नेचुरल डेथ इस प्रोसेस या ये कहलाती है लाइफ स्पेन, लाइफ पीरियड। और प्रत्येक जीव का जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म है उसका जो लाइफ स्पेन है या लाइफ पीरियड है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस only living beings or organism. Okay, we did not study about non-living things, we study about living things. Okay, then I will define the term biology. Okay, the term biology is made up of two Greek word, one is bios, another is logos. Bios means life, logos means to study. Okay, then what will you say about it? कि what is biology? Biology is the study of life, study of life is called biology. I will explain biology. I am writing here definition of biology. Biology is the subject, is the branch of science. Biology is the branch of science which deals the study of life form and living process. What is biology? Biology is the branch of science which deals the study of life form and living process. Life form और living process किसकी होती है? ऑर्गेनिज्म की होती है, लिविंग बींग्स की होती है। तो सजीवों का या कह सकते हैं जीवन का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, द टर्म biology is the term biology is coined by Lamarck and Treviranus. By Lamarck and Treviranus in 1802. The term biology is coined by Lamarck and Treviranus in 1802. Then first big observation या फर्स्ट बिग बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय एरिस्टोटल। फर्स्ट बिग बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय Aristotle. Aristotle is the scientist. Aristotle is the scientist. He established this branch. Then we can say कि father of biology Aristotle. Who is the father of biology?
Aristotle. Aristotle is called father of biology. Okay, he is also called father of zoology. He is also called father of natural history. Okay, then these living things are categorized in two categories. Okay, organism और living things categorized in two categories based on nutrition, based on cell wall and cell structure also. One is plant, another is animal. Based on it, biology is also classified in two branches. One is botany, another is zoology. Botany deals the study of plant, zoology deals the study of animals. Okay, you can take a screenshot, then I will rub it. Okay, देखिए ये जो बायोलॉजी है इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है. एक तो है बॉटनी, अनदर इज जूलॉजी. ओके, इन बॉटनी वी स्टडी अबाउट प्लांट. In study of plant is called botany, and study of animal animals is called zoology. Okay, जो बायोलॉजी, ये बॉटनी जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से, और उसका जो ग्रीक वर्ड है वो है बॉस्किन. और बॉस्किन का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो होता है ग्रेजिंग, जिन्हें चरा जाता है. अब चरा किन्हें जाता है? प्लांट एवं प्लांट प्रोडक्ट. ओके, तो वो क्या कहलाते हैं, या वो प्लांट हैं जिन्हें चरा जाता है, और उनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है. क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है. ये जो बॉस्किन है एक दूसरी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जो है बाओश. क्या है? बाओश. और बाओश का अर्थ होता है कैटल, मवेशी, एनिमल. क्या होता है? कैटल, मवेशी. अब देखो, चरने का काम कौन करते हैं? मवेशी करते हैं. किसको चरा जाता है? किसको खाया जाता है? जो एनिमल्स हैं वो किसको खाते हैं? वो किसको? प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. आप हो, मैं हूँ, मैं हर्बीवोर्स हूँ, और मैं जितना भी भोजन लेता हूँ प्लांट रिलेटेड लेता हूँ. किससे लेता हूँ? मोस्टली किस पर डिपेंड हूँ मैं? प्लांटों पर डिपेंड हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? हर्बीवोर्स. ओके, तो प्लांटों की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है. नाउ zoology also made up of two Greek words, zoon and logos. Logos means, you know very well,
टू स्टडी जून्स मीन्स एनिमल, और जो एनिमल की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। अब बात करते हैं कि जो बायोलॉजी की दो ब्रांच हैं, क्या हैं? दो ब्रांच, जैसे कि आप अर्थ पे रहते हो, ये मान लिया क्या है आपकी अर्थ है, और अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मोस्टली टू टाइप हैं, है ना। ये अपना प्लांट है, यहाँ पर मान लिया ये आप हो, एनिमल है, मानव है, इसके अलावा है ना पक्षी भी हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे जीव हैं। वो डिपेंड किस पर हैं? प्लांटों पर। किस पर डिपेंड है? इन दोनों के मध्य क्या होती है? इन दोनों के बिटवीन रिलेशनशिप है। क्या है? रिलेशनशिप। ये जो देखो, ये जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। वो क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है। इट मीन्स ये अपने भोजन का स्वयं निर्माण करता है, फोटोसिंथेसिस। ही सिंथेसाइज फूड बाई फोटोसिंथेसिस, बट I can't photosynthesize because I don't have a chloroplast. I don't have a chloroplast, but plant have a chloroplast. They can photosynthesize, then they can produce organic material, then food also. Okay. So animal and plants are the main creature of the earth. Okay. It accept it, so many things also there. Okay, so many things in microflora. Microflora, it means so many organism, so many microorganism also present on earth, which cannot be seen by naked eyes. Microorganism can't see by naked eyes, it can be seen by microscope only. Okay, तो ये तो हैं छोटे वाले जिन्हें अपन आंखों से नहीं देख सकते, ये हैं बड़े वाले। ओके, अब सुनो, ये जो ब्रांच है, कौन सी ब्रांच? जो जूलॉजी ब्रांच है, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई? ये एस्टेब्लिश की गई एरिस्टोटल के द्वारा। एरिस्टोटल के द्वारा, इसलिए एरिस्टोटल को अपन क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। और ये जो ब्रांच बॉटनी है, ये एस्टेब्लिश की गई थियोफेस्टस के द्वारा। किसके द्वारा? थियोफेस्टस के द्वारा। इसलिए ये जो थियोफेस्टस हैं वो एरिस्टोटल के स्टूडेंट हैं। क्या हैं? थियोफेस्टस वाज द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। ही स्टडी ओनली प्लांट्स, दैट्स वाई ही कॉल्ड फादर ऑफ botany. Okay, and father of biology is Aristotle. Father of biology. In this class we introduce about biology. Okay, biology is made up of two Greek word, bios plus logos. It means study of life is called biology. लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं टू टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एनिमल और एक होते हैं प्लांट।
जो प्लांटों की स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। दिस ब्रांच इज एस्टेब्लिश बाई थियोफेस्टस, दैट्स वाई थियोफेस्टस इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी। ओके, देन जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, और दिस ब्रांच इज एस्टेब्लिश बाई एरिस्टोटल, दैट्स वाई एरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी। तो एरिस्टोटल इज द ग्रेट फिलोसफर, he is the father of biology, he is the father of zoology, and also he was the father of natural history, father of natural history. Okay, I hope आपको ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बायोलॉजी का दिया वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अगर यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केवी बायोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए। थैंक यू।